ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھیں آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی، نمکین حسن والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ارباب ذی احتشام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام سرور کائنات مقصد حیات
मकसूद कायनात, वजह तख्लीक कायनात, आलम नूर जहान कुद्स के सैयद व सरदार, दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल, मौलाए कुल, मोहसिन इंसानियत, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व बाबरकत पर, जिनके तवस्सुल से, जिनके वसीलाए पाक से रब्बे काबा ने मुझे और आपको दौलत ईमान से माला माल फरमाया। दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात सारी ज़िंदगी मुझे और आपको इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अरबाबी एहतशाम अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, और नहीं हमने भेजा आपको मगर रहमत बनाकर तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बे कायनात ने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको ना भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम आदमियों को घेरने वाली है, खुशखबरी देता और डर सुनाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जलवा गरी हुई, तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और रसूलाने उज़्ज़ाम कबीलों की तरफ नबी बनकर आए, कौमों की तरफ नबी बनकर आए। हर कौम का एक नबी बनकर आया, हर कौम का कबीले का एक रसूल बनकर आया। और ये बात याद रखें, नफ्से नबुव्वत और रिसालत में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बराबर हैं। हम इनमें से ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते। ये नहीं कि एक नबी को मान लिया, एक नबी का इनकार कर दिया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। हम अल्लाह के तमाम नबियों रसूलों को मानते हैं कि इनको अल्लाह ने नबुव्वत रिसालत अता फरमाई है। तो सारे नबी जो हैं नबुव्वत रिसालत में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन दर्जात नबुव्वत में भी फ़र्क है और दर्जात रिसालत में भी फ़र्क है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीना अला बाद, और बेशक हमने नबियों में एक को एक पर बढ़ाई दी। इस एतबार से कि अंबिया जो हैं वो एक दूसरे से अफजल हैं, फजीलत के एतबार से, दर्जात के एतबार से, कि इनमें से बाद को बाद पर फजीलत दी है। और तीसरे पारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन ने इस पारे के आगाज़ में फरमाया, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया ये रसूल हैं कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया। व मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से एक वो भी है जो अल्लाह से हम कलाम होता है। वरफा बादहुम दराजात, और एक इनमें नबी रसूल ऐसा भी है जिसके दर्जे बुलंद कर दिए हैं। इस लिहाज से कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इस हकीकत को वाज़े किया कि दर्जात नबुव्वत व रिसालत में फ़र्क है, और इस अंबिया और उस बुनियाद पर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से अफजलो आला हैं।
इसलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा भी पुकार उठे। आप कलम उठा के कुरान मजीद की आयत को सामने रखकर आप ये कलाम लिखते हैं। और अमूमन मैं अपनी तकरीर में इस बात को बयान करता हूँ कि आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा का कलाम आम कलाम नहीं है। आपका कलाम बड़ा कमाल कलाम है। जब भी आपने कलम उठाया है, कलाम लिखा है, या तो कुरान मजीद की आयात का तर्जमा और तफसीर आपका कलाम बनता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की शरह जो है आपका कलाम बनता है। तो कुरान मजीद की आयात को सामने रखा है, जो आयात है वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीना अला बाद, और बेशक हमने नबियों में एक को एक पर बढ़ाई दी। और दूसरी आया करीमा तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि हमने इनमें एक को दूसरे पर अफजल किया। तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने इन आयात को सामने रखकर अपना कलम उठाया है और अहले सुन्नत व जमात के अकायद की आबियारी फरमाते हुए आपने लिखा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अल्लाहु अकबर कबीरा। लिहाजा जब भी अल्लाह ने किसी नबी को भेजा है, एक कौम के लिए नबी बनाकर रसूल बनाकर भेजा है, तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की खुशियां भी महदूद थीं। और जिस कौम की तरफ अल्लाह का नबी आता, उसी कौम को नबी के आने की आमद की खुशी होती। वो कौम ही उस नबी और रसूल के आने की आमद पर खुशी का इजहार करती। इनको रब्बे जुल जलाल ने जो सलाहियतें अंबिया को अता की थीं, उनका ताल्लुक एक कौम के साथ था और मसाइल को हल करने की ताकत दी थी, वो भी एक कौम के साथ मुंसलिक थी। लेकिन जब हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, चूंकि जमी अकवाम के हमारे नबी अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी भी जमी अकवाम को है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमी अकवाम की बोलियों का अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमी अकवाम के मसाइल को हल करने का इख्तियार भी अल्लाह ने अता फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, और हमने हर रसूल को उसकी कौम ही की जबान में भेजा। इससे इस्तेदलाल किया है कि रब्बे कायनात का फरमान है कि हमने हर रसूल को अपनी कौम की जबान के साथ भेजा। और यहाँ रब्बे जुल जलाल ने लफ्ज़ लिसान भी वाहिद इस्तेमाल फरमाया है, लफ्ज़ कौम भी वाहिद इस्तेमाल फरमाया है। ये नहीं फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिअलसिनति अक़वामिही, हमने हर रसूल को अपनी सारी कौमों की जुबानें देकर भेजा है, बल्कि ये फरमाया कि हमने हर रसूल को अपनी कौम की जबान के साथ भेजा है। इससे पता चला कि इनकी कौम भी एक होती थी और उस कौम की जबान भी एक ही होती थी, और रब्बे जुल जलाल ने रसूल को उस जबान का इल्म देकर इस कौम की तरफ मबूस फरमाया था। लेकिन हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद इन सब से मुख्तलिफ है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको न भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम आदमियों को घेरने वाली है, खुशखबरी देना और डर सुनाना ये आपका काम है। इस बुनियाद पर दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की विलादत की खुशी एक कौम तक महदूद थी,
हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी जमी अकवाम और जमी मखलूकात के लिए, जो मुस्लिम शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मुझे 6 चीज़ों की बुनियाद पर तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी गई है। इसमें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं जमी मखलूकात की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे जमी मखलूकात की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है। यहाँ इस हदीस शरीफ में इंसानियत से आगे दीगर मखलूकात का भी जिक्र आ गया। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का और आपके मिलाद शरीफ का इम्तियाज ये है कि इस पर खुशी सिर्फ इंसानों को या एक कौम को नहीं, बल्कि ये खुशी का पैगाम जमी इंसानों के लिए था और बहसीयत मुकल्लफ इनके लिए और इसके अलावा जमी मखलूकात के लिए, क्योंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़हूर अल्लाहु अकबर कबीरा रहमत की अलामत बनकर और रहमत की जमानत बनकर हुआ। इस बुनियाद पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईद है जो कायनात की सबसे बड़ी ईद है। इसके अंदर इंसान सिर्फ खुशी मनाने के लिए शामिल नहीं, बल्कि कायनात का हर जर्रा अपने अपने अंदाज में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद पे खुशियों का इजहार कर रहा है, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में किसी एक कबीले के लिए, कौम के लिए नबी बनकर नहीं आए। अल्लाह ने सारे इंसानों के लिए, बल्कि सारी मखलूकात के लिए, जमी मखलूकात जितनी भी अल्लाह की मखलूकात है, सब के लिए रब ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रसूल बनकर आए हैं, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी सारी कायनात को, कायनात के जर्रे जर्रे को है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर आसमानों पर भी खुशियों का इजहार किया गया। आसमान वालों ने भी नबी अलैहिस्सलाम की आमद पे खुशियां मनाई और जमीन वालों ने भी करीम आका अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियों का इजहार किया। कायनात का जर्रा जर्रा जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पे खुश हुआ। नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर जो है कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा। दरख्तों ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद पर खुशियों का इजहार किया। जानवरों ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार किया। पहाड़ों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियों का इजहार किया, क्योंकि करीम आका अलैहि सलाम जो हैं जमी मखलूकात के लिए रसूल बनकर आए हैं। अर्शों पर भी खुशी का इजहार हुआ। इसलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा मोहब्बत भरा कलम उठा के लिखते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे देखें हमा वक्त हर वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हो रहा है, और जमीन पर देखें हर जगह पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हो रहा है। रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन ने फरमाया, हदीस कुदसी है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके जिक्र को इस कदर बुलंद कर दिया है, जहां पे मेरा जिक्र होगा साथ तेरा भी जिक्र होगा। अल्लाह के अर्श पर रब का जिक्र, साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, फर्श पर अल्लाह का जिक्र, साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, पहले आसमान पर रब का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, दूसरे आसमान पर अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, तीसरे आसमान पर अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, चौथे आसमान पर अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, पांचवें आसमान पर अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, छठे आसमान पर अल्लाह का जिक्र,
साथ ही नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, सातवें आसमान पर अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, जन्नत में अल्लाह का जिक्र, साथ ही मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र। जहां जहां पे भी जिक्र खुदा है साथ ही जिक्र मुस्तफ़ा भी है। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श में तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिधर भी हम कान लगाते हैं हर तरफ से नबी अलैहिस्सलाम की दास्तान ही सुनाई देती है, हर तरफ से जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निदा आती है, हर तरफ से जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा आती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन ने सारी मखलूकात के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। और नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है इस कदर बुलंद किया है, जिस जिस जगह पे रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन का जिक्र, वहां वहां पर जो है अल्लाह के जिक्र के साथ जो है जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह तो एक हदीस पाक जिसमें दलाइल नबुव्वत में ये हदीस पाक मौजूद है कि इसके अंदर जो है ये कलिमात मौजूद है दलाइल नबुव्वा में, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई और नबी अलैहिस्सलाम को साथ जो है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ दरख्तों ने भी कलाम किया, मेरे मुस्तफ़ा पे दुरूद पाक पढ़ा, और पहाड़ों ने भी मेरे मुस्तफ़ा को सलाम किया, पहाड़ भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर जो है दुरूद पाक पढ़ते रहे, जानवर जो है उन्होंने भी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलाम फरमाया। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, नबी अलैहिस्सलाम सारी मखलूकात के लिए, जमी मखलूकात के लिए रसूल बनकर आए हैं। सब की तरफ अल्लाह ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जब मीना में ऊंटों को ज़बह करने लगे कुर्बानी के लिए, तो ऊंट जो है कतार में खड़े थे, कतारों को तोड़ते हुए, कतार को तोड़ते हुए ऊंट जो है एक दूसरे से, हर ऊंट आगे बढ़ रहा है कि पहले मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हाथों से ज़बह हूं। तो इन ऊंटों को किसने बताया है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब के लिए रसूल बनकर आए हैं, तमाम बनीनो इंसानियत के लिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम रसूल बनकर आए हैं। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने जमी मखलूकात की तरफ मुझे रसूल बनाकर भेजा है। इसलिए ये ऊंट भी जानते हैं कि ये हाथ जो है अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पाक है, वगरना ऊंट तो कसाई को देखकर घबराता है, दौड़ता है, जल्दी करके जो है ऊंट जो है वो कसाई की गिरफ्त में भी नहीं आता, बड़ी मुश्किल से उसको बांध कर ज़बह करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में देखें ऊंट जो है खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं और अपनी गर्दनों को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में झुका रहे हैं। और फिर एक ऊंट जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ आया है और आकर ऊंट ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों पर सजदा कर दिया है, सजदा रेज हो गया, अपने सर को रख दिया है। दलाइल नबुव्वत में ये रवायत जो है मौजूद है, ये हदीस पाक मौजूद है। लिखते हैं कि जर जारा वादा जिराना हो कि ऊंट जो है दौड़ता हुआ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और आकर अपना सर जो है नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर रख दिया। अब जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जर जारा वो गुफ्तगू करता है, कलाम करता है। अब जाहिर है ऊंट की बोली को कोई नहीं जानता कि वो कलाम क्या कर रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है। अरे चिड़िया की बोली को कोई नहीं जानता कि परिंदे क्या बोलते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तमाम मखलूकात के लिए रसूल बन के आए हैं।
तो अल्लाह ने तमाम मखलूकात की जबानें भी मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई हैं। तमाम मखलूकात की बोलियां भी अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई हैं। अब सहाबा देख रहे हैं कि ऊंट जो है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज हो गया है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कदमों पे ऊंट ने अपना सर मुबारक जो है अपना रख दिया है और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बोलता हुआ अर्ज कर रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊंट की बात को समात किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने इसकी जबान की ट्रांसलेट फरमाई। हुजूर सलाम ने इसकी जबान का तर्जमा किया। अब कोई सहाबी नहीं जानता कि करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जो ऊंट बोल रहा है, जर जरा वादा जिराना हो, जिसने गुफ्तगू करते हुए अपना सर जो है करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में झुकाया है, तो ये क्या बात कर रहा है। ज़ाहिर सहाबा जो है ऊंट की बोली से वाकिफ नहीं है, उसकी जबान से वाकिफ नहीं है। कोई किसी की लैंग्वेज से वाकिफ होगा ना तो तभी उसका हाल भी समात कर सकेगा, तभी उसकी बात को भी समात कर सकेगा, तभी उसके सवाल को भी समात कर सकेगा। जब सवाल को समात करेगा उसके बाद अगर ताकत रखता है तो उसका वो जवाब भी देगा। अगर उसके पास इख्तियारात नहीं है तो वो उसका मसला जो है वो हल भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जमी मखलूकात के लिए रसूल बनाकर भेजा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जमी मखलूकात के लिए नबी बनकर आए हैं। लिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट की बात को समात फरमाया। फिर इसकी ट्रांसलेट जो है, इसका तर्जमा जो है इसकी जबान का मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है, उसको बुलाया जाए। एक शख्स जो है आता है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस ऊंट का मालिक मैं हूं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन बात, अब देखें ऊंट मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह मुकद्दसा में अपने सवालात को बयान कर रहा है। अपनी बात को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में ऊंट जो है बयान कर रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी बात को समात किया है। फिर इसका जो मसला था, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। सारी कायनात के खजानों की मलकियत का ताज अल्लाह ने किसी और के सर पे नहीं, अल्लाह ने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे सजाया है। ऊंची कह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊंट के मालिक सुन, ये ऊंट जो है तेरी शिकायत कर रहा है, तेरी कंप्लेन कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये मेरा मालिक जो है, मैं इसका सारी उम्र जो है पानी भरता रहा हूं, इसके काम करता रहा हूं, इसके जो है कदमों पे कुर्बान होता रहा हूं, सारी उम्र मैंने इसकी नौकरी की है और अब मैं कुछ जो है ज़ईफ हो गया हूं। तो अब ये मेरा मालिक जो है मुझे चारा कम डालता है और काम मुझसे ज्यादा लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है जिनकी बारगाह में आकर ऊंट भी शिकायत कर रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऊंट की शिकायत को सुना है। ये नहीं कहा कि अब मैं तो ये इख्तियार नहीं ना रखता कि तेरी शिकायत को हल कर दूं, तेरा मसला जो है हल कर दूं, तेरा मुआमला जो है मैं बेहतर कर दूं। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने माजिरत नहीं फरमाई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर आओ भी ऊंट के मालिक, ये देखो तुम्हारी शिकायत इस ऊंट ने की है, अब तुम बेहतर है कि इस ऊंट को मैं मोहम्मद के हाथों बेच दो, मैं तुझे इसकी कीमत दे देता हूं, ये ऊंट मेरे हवाले कर दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये ऊंट मैं बेच नहीं सकता। आका
तोहफे के तौर पर आप रख लें, मैं आपकी बारगाह में इस ऊंट को कुर्बान कर देता हूं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इस तरह नहीं कि तू ऊंट को मेरे हाथों बेच दे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर इसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उस ऊंट को बेच नहीं सकता। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ऊंट को मेरे हाथ बेच दे और इसकी कीमत जो है तू ले ले। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारे कबीला जो है उसके कुछ लोग हैं और जिनकी किफालत इसी ऊंट से होती है, उनका कोई और जरिया वास्ता नहीं है कि जिसके जरिए से उन तक रिज़्क जो है पहुंच जाए। उनकी माईशत जो है, इकोनॉमिक जो है, उसका दारो मदार जो है सारा इसी ऊंट पर है। ये काम करता है तो तब उनको जो है इसके जरिए जो है कस्बे हलाल मिलता है, रोजी मिलती है, जिसके जरिए उनका निजाम सिस्टम चल रहा है। इसलिए मैंने आपकी बारगाह में अर्ज की मैं ऊंट नहीं बेच सकता। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इसको चारा जो है पूरा डाला कर, इसको खुराक जो है पूरी दिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो ऊंटों के, जानवरों के मसाइल को भी हल करने वाले हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। इसलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, बे उनके वासिते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वासिते खुदा कुछ अता करे। आशा गालत गालत ये हवस बेबसर की है। ये तो वो शख्स ही बात कर सकता है ना कि हुजूर के वसीले के बगैर हमें सब कुछ मिल सकता है। जी हुजूर की हमें जरूरत नहीं है कि जिसने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरिया रहमत का मुशाहदा नहीं फरमाया, जिसने अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ा, जो रब के कुरान से बेबहरा है, जो करीम आका अलैहिस्सलाम के फरमानात और नबी अलैहिस्सलाम की जो मेहरबानियां सहाबा पे हुई हैं और सारी कायनात में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जो मेहरबानियां हुई हैं, उनसे जो बेबहरा है, जो ना वाकिफ है, ना आशना है, वो ही ये बात कह सकता है। वगरना कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। अल्लाह ने तमाम कायनात को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की खातिर बनाया है। अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ना होते तो कायनात भी ना होती। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा कलम उठा के लिखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इसलिए फिर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों को देखते हुए फिर कलम उठा के लिखते हैं, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। आखिरी बज़म मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बज़म है। इसके बाद अब कोई और बज़म नहीं है, कोई और मजलिस नहीं है। क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत है। अब ना कोई नबी, ना रसूल, ना बरूजी तौर पर, ना ज़िल्ली तौर पर कोई भी नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने नबूवत का आखिरी ताज मेरे मुस्तफ़ा के सर पे सजाया है। इसलिए अल्लाह ने हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। फिर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने भी मोहब्बत बड़ा कलम उठाया। आप लिखते हैं, बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ। आखिरी बज़म मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बज़म है और पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आए, मुख्तलिफ कबाइल के कौमों के नबी बनकर आए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जमी मखलूकात के रसूल बन के आए हैं। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। अल्लाह के नूर का पहला जलवा जो है वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, जिसको शायां है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी हैं जिनको अल्लाह के अर्श पर कदमैन शरीफैन रखने की रब ने ताकत अता फरमाई है, जिनको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबियों और रसूलों में से कोई भी अल्लाह के अर्श पर जलवागर नहीं हो सका। ये जलवागरी अल्लाह के अर्श पर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की हुई है। इसलिए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों से अफजल हैं, आला हैं। इसलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अल रहमा ने कुरान मजीद की आयात को सामने रखकर और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात को सामने रखकर अपना कलम उठाया है। मोहब्बत भरा कलम उठा के लिखते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी। औला बमाना सबसे बेहतर, आला बमाना सबसे अफजल। अल्लाह ने कायनात में सबसे बेहतर अफजल व आला किसी और को नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बनाया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमी मखलूकात के अंदर जितनी भी रब की मखलूकात है, अल्लाह ने सबसे अफजल व आला मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बनाया है। जिस कदर अल्लाह ने शान अजमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है, ऐसी शान व अजमत अल्लाह ने किसी और नबी और रसूल को अता नहीं फरमाई। जनाब खलील अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, वाला तुखज़ीनी यौमा युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे रुसवा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे। अशर के दिन जब सबको उठाया जाएगा तो जनाबे खलील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह उस दिन मुझे रुसवा न करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं की, खुद रब ने इरशाद फरमाया। देखें करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत को अल्लाह ने सारे नबियों पे मेरे मुस्तफ़ा को अफजल बनाया है, आला बनाया है। सबसे बुलंद अल्लाह ने मर्तबा मकाम मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं, अल्लाह ने इनमें बाद को बाद पर फजीलत अता फरमाई है, एक दूसरे पर अल्लाह ने अफजल किया है। और तमाम नबियों रसूलों पर अल्लाह ने सबसे बड़ा अफजलियत का ताज जो है किसी और को नहीं, हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो रब खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, यौमा ला युखज़िल्लाहुन नबिय्या वल्लज़ीना आमनु माअहू, जिस दिन अल्लाह रुसवा न करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ के ईमान वालों को। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सहाबा भी इस बशारत उज़्मा से मुशर्रफ हुए। अल्लाह ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जिनको नबी अलैहिस्सलाम के अस्सहाब कहा जाता है, जो सहाबा हैं, इनको भी अल्लाह मोहम्मद का सदका रुसवा न फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा मकाम है। इसलिए फिर आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा आपके कलम को भी वजद आया, वजदानी कैफियत में आपने कलम उठाया, लिखा, सबसे औला व आला हमारा नबी सब कहें, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला। बाला माना बुलंद, वाला माना ऊंचा तर। अल्लाह ने कायनात में सबसे बढ़कर बुलंदी, बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम जो है हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। इसलिए आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा ने अकायद अहले सुन्नत की आप यारी फरमाते हुए मोहब्बत भरा कलम उठाया है। आप लिखते हैं, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अल्लाह फिर कुरान में फरमाता है, आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजे। अब देख के पहले अंबिया जो हैं मदद के लिए अल्लाह को पुकारते रहे, इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में रब्बुल आलमीन 5000 फरिश्तों को मदद के लिए भेज रहा है। फिर फरमाया, वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर, और इसके बाद फरिश्ते मदद पर हैं। फिर रब फरमाता है, फलन वल्ली जन्ना का किबलतन तरदाहा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक करीब है कि तुम्हारा रब अल्लाह अकबर कबीरा जरूर तुम्हें फेर देंगे उस किबला की तरफ, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस किबला पर तुम राजी हो। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं,
खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। कायनात का जर्रा जर्रा आज अल्लाह की रजा चाहता है। इधर देखें, मेरा रब जो है मेरे मुस्तफा की रजा चाहता है। किस कदर अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्तबा मकाम अता फरमाया है। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत रहमा फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर कबीरा। सारी कायनात अल्लाह की रजा चाहती है और मेरा रब मेरे मुस्तफा की रजा चाहता है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हैं और बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। दिल में ख्याल है कि हमारा किबला जो है खाना काबा होना चाहिए। अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को इमामुल किबलतैन बनाया है। दोनों किबलों की इमामत का ताज अल्लाह ने किसी और नबी और रसूल के सर पे नहीं सजाया। दोनों किबलों की इमामत का ताज अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सर पे सजाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कलीमो नजी मसीहो रदी, अल्लाह अकबर कबीरा। ये सब जो है इनके ऊपर जो है अल्लाह ने मर्तबा मकाम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया है कि हमारा किबला जो है खाना काबा होना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा की रजा ये थी, हुजूर की मनशा ये थी, मर्जी ये थी। हुजूर सलाम ये चाहते थे कि किबला जो है हमारा अब खाना काबा होना चाहिए। जैसे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये चाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म आ गया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ महबूब, अब आप अपना चेहरा जो है मस्जिद हराम की तरफ कर लें। आज के बाद आपकी रजा के मुताबिक, आपकी मनशा के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक आपके रब ने किबला खाना काबा को बना दिया है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत रहमा फिर मोहब्बत भरा कलम उठा के लिखते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सारी कायनात अल्लाह की रजा चाहती है, मेरा रब मेरे मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। और फिर रब काबा ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि ए हबीब आप राजी हो जाएंगे। आय हाय हाय, आज कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की रजा मांगता है। तो फरमाया अन करीब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से चले हैं तो अल्लाह इसको यूं बयान फरमाता है, फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तुकुम, तो मैं तुम्हारे यहां से निकल गया जबकि तुमसे डरा। जब हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का वक़्त आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुस्ने इबारात को यूं कुरान में अदा फरमाया, व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो जब काफिर तुम्हारे साथ मकर करते थे। फिर जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर अल्लाह से कलाम किया और अल्लाह ने उस कलाम को सब पर जाहिर फरमा दिया। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के साथ हम कलामी हुई, रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम फरमाया, फरमाया वाना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला आना फाबुदनी व आकी मिस्सलाता लिज़िक्री। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया और मैंने तुझे पसंद किया, अब कान लगाकर सुन जो तुझे वही होती है। बेशक मैं वही हूं, अल्लाह के मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी बंदगी कर, कि तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौक समावात का मुकालिमा अल्लाह ने फरमाया और इसे सब से रब ने छुपाया और फरमाया फाऊहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने फरमाया वही फरमाई अपने बंदे की तरफ जो वही फरमाई, जो रब ने चाहा अपने हबीब से कलाम फरमाया। तो रब ने इस कलाम को जो है सब पे जाहिर भी नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह।
ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी, दूर कर देगी। जब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो रब ने खुद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। फरमाया कि मेरा महबूब तो उस वक्त तक कलाम ही नहीं करता, अपनी ख्वाहिश से मेरा मुस्तफ़ा कलाम गुफ्तगू ही नहीं करता। जब भी मेरा हबीब बोलता है मैं रब्बुल आलमीन की मर्जी से बोलता है। जब भी मेरा हबीब कलाम करता है तो मैं रब की मर्जी से मेरा मुस्तफ़ा कलाम फरमाता है। फिर क्यों न कही सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। आए मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है और इस हदीस में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से इस्माईल अलैहिस्सलाम को बरगुज़ीदा पैदा फरमाया, कि अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बड़ा मर्तबा मकाम अता फरमाया, बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी अजमत अता फरमाई। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम एक तो अल्लाह के नबी थे, दूसरे बड़े तकवे वाले थे, परहेजगार थे। तो अल्लाह ने औलाद आदम में से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है, बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम अता फरमाया है। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से बनी कनाना को अल्लाह ने अफजल किया। ये जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है, बनी कनाना, ये जो बड़ा कबीला जो आपकी औलाद से चला। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने बनी कनाना को अफजल किया और बनी कनाना से अल्लाह ने कुरैश को पैदा फरमाया। ये जो कुरैश मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का बड़ा कबीला, जिस कबीले से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की आमद हुई है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का कबीला बनु कुरैश है। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरैश से अल्लाह ने बनी हाशिम को सब पे अफजल किया। बनी हाशिम को अल्लाह ने तमाम कबीलों पर, तमाम कौमों पर अल्लाह ने बनी हाशिम को अल्लाह ने अफजल फरमाया। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी हाशिम में सबसे अफजल रब्बे काबा ने मैं मोहम्मद को बनाया। पता चला मेरे नबी अलैहिस्सलाम के कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं है। अल्लाह ने इस लिहाज से भी तमाम मखलूकात पे मेरे मुस्तफ़ा को फ़ौक़ियत अता फरमाई है। अफजल व आला अल्लाह ने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दादा जान अब्दुल मुत्तलिब के वालिद है हाशिम, और ये हाशिम मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खानदान है। बनु हाशिम के मेरे नबी अलैहिस्सलाम चश्मो चराग है। अल्लाह ने तमाम खानदानों पे खानदान मुस्तफ़ा को फ़ौक़ियत अता फरमाई है। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम का खानदान सारे खानदानों से अफजल है। तो फिर आला हज़रत ने भी कलम उठा के लिखा सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फख्र। फरमाया लोगों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, अव्वलीन व आखिरीन जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक, आदम अलैहिस्सलाम से बशरियत का आगाज हो रहा है और आखिरी इंसान तक। फरमाया अव्वलीन व आखिरीन, अल्लाह की तमाम मखलूकात, अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन अलल्लाह वला फख्र। फरमाया अव्वलीन व आखिरीन सब पर अल्लाह ने मैं मोहम्मद को सबसे बढ़कर इज्जत अता फरमाई है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कायनात में कोई इज्जत वाला नहीं। सबसे बढ़कर अल्लाह ने जिनको इज्जत का ताज अता फरमाया है, बुलंदी का, वो जात करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। तो फिर क्यों ना कहिए, आज जो बेवकूफ नदान कहते हैं जी हुजूर के भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, हुजूर के भी दो कान हमारे भी दो कान,
हुजूर अलैहि सलाम के भी 2 कदम, हमारे भी 2 कदम, इनको शान मुस्तफ़ा का अंदाजा ही नहीं है। अल्लाह ने तो मेरे मोहम्मद को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है कायनात में। क्या तुम्हारे बारे में भी ऐसा है, कोई दावा कर सकता है कि अल्लाह की मखलूकात में अव्वलीन व आखिरीन सबसे अफजल मैं हूं? कोई कायनात का फर्द दावा नहीं कर सकता। ये दावा जो है करने का, जिसको अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, जिसको रब ने कुव्वत अता फरमाई है, जिसको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है, जिसको अल्लाह ने ये वजाहत अता फरमाई है, जिसको रब ने ये बुलंदी का ताज अता फरमाया है, वो जात मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात पाक है। लिहाजा मेरे मुस्तफ़ा जैसा कायनात में कोई नहीं है। इसीलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा कलम उठा के लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। 2 जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी ये दिलो जां नहीं, कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। बा खुदा खुदा का यही है दर, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए तो आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा मोहब्बत भरा कलम उठा के लिखते हैं, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मेरा रब उसका है जो मेरे मोहम्मद का है। आह कहो सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी का नहीं वो अल्लाह का भी नहीं, जो मेरे मुस्तफ़ा का है वही रब का है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। जो काफिर मेरे नबी से फिरा ना, जिसे मेरे मुस्तफ़ा का इनकार किया है, वो तो अल्लाह से ही फिर गया है, अल्लाह से ही दूर हो गया है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो के उस दर का हुआ जो मेरे नबी के दर का हुआ है। आला फरमाते वो के उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। अबू बकर मेरे मुस्तफ़ा के हुए हैं, सारी खल्के खुदा अबू बकर की हो गई। आय आया, आज अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया जा रहा है, क़यामत तक नाम लिया जाएगा। और मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जो मेरे साथ दाईं तरफ मेरे हाथ को पकड़े हुए और बाईं तरफ मेरे साथ खड़े होकर उमर बिन खत्ताब सबसे पहले जो जन्नत में जाएंगे, फरमाया इनको बुलंदी का ताज मैं मोहम्मद ने अता फरमाया है, मेरे रब ने अता फरमाया है। वजह क्या है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के हुए हैं, अल्लाह भी इनका हो गया है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो के उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। वो के उस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। अबू जाल मेरे नबी के दर से फिरा है, अल्लाह उससे दूर हो गया है। अबू लाब मेरे मुस्तफ़ा के दर से फिरा है, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था। अबू जाल भी जो है बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, हुस्न वाला तो था, माल भी बड़ा था, मक्के में बड़े रईस थे। और अबू लाब के पास तो सोने की ईंटें मौजूद थी, इतना अमीर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से अलहदा हुआ है तो जलीलो खार हो गया है। दुनिया में कोई मकाम नहीं मिला। बिलाल हबशी जो कि उस वक्त बड़ा गरीब था, मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के साथ जनाब हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु वाबस्ता हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में मुअज्जिनीन की सरदारी का ताज हजरत बिलाल हबशी के सर पे सजा दिया है। वो कि उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। वो कि उस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आए हदीस पाक समात फरमाए, मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक बाब फजाइल सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मैं बहिश्त के दरवाजे पर आऊंगा, जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और दरवाजा खलवाऊंगा। ये देखे इख्तियारात मुस्तफ़ा का, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अब किसी को क्या पता जन्नत के दरवाजे पे जाना कि नहीं जाना। नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपने आप को मुमासलत देने वालों, ये कहने वालों हम भी नबी जैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा जैसा तो कोई नबी रसूल भी नहीं है,
یہ کسی کو قیامت کے دن مقام نہیں نصیب ہونا جو اللہ نے میرے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا فرمانا ہے۔ فرمایا میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کا دروازہ میں محمد کھلواؤں گا۔ جنت کا فرشتہ کہے گا کہ کون ہو؟ وہ پوچھے گا نا جنت کا فرشتہ جس کی اللہ نے جنت کے آگے دروازے پہ ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پوچھے گا کون؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے کہ سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا۔ اگر کوئی کسی گھر میں جائے اس کے ساتھ تعلق نہ ہو تو گھر کا نگہبان جو چوکیدار ہوتا ہے، جو محافظ نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی واپس چلے جاؤ، تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ تو جنت کے مالک ہیں، اللہ جنت کا خالق ہے، میرے مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو شاعر قلم اٹھا کے لکھتا ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، آئے آئے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب جنت کا جو فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی آگے جنت کے دروازے پہ لگی ہے، پوچھے گا کون؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ اب وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ سماعت کریں۔ وہ کہے گا کہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ جنت کا دروازہ میرے محمد سے پہلے کسی اور کے لیے نہیں کھولا ہے۔ اب کہو سب سے اولا و اعلیٰ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے جن کے لیے کھولا جائے گا وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سمجھ میں آ گیا۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ کہے گا مجھے رب نے حکم دیا ہے آپ سے پہلے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے جن کے لیے کھلنا ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے جن کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تمام رسولوں پر افضل بنایا ہے، وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے جن کو ساری جمیع مخلوقات کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے جن کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے وہ ذات میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا ہے، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات کوئی اور ذات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، اللہ رب العالمین آکم الحاکمین، ساری زندگی کریم آقا مدنی تاجدار امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب ذی احتشام آخر میں اعلان سماعت فرما لیں۔ آپ بھی ظاہر پریشان ہوتے ہوں گے کہ ہر جمعے میں اعلان ہو جاتا کوئی نہ کوئی۔ ظاہر ہے یہ جو وقت جو ہے نا بڑا مشکل وقت جا رہا ہے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔